بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکرمہ بالعلم والحلم والبرہان، والصلاة والسلام علی رسولہ الذی انزل علیہ القرآن، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودہا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام، ائمہ مساجد، اساتذہ کرام، مشائخ اعظام، ہماری آج کی یہ تربیتی نشست، تربیتی ورکشاپ، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں باعث سعادت بنا دے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ التحریم کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اگر ایک معنی میں لیا جائے تو اہل و عیال میں ہمارے وہ طلباء شامل ہیں کہ جو ہمارے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور تربیت کے حصول کے لیے آتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں میری ذمہ داری یہ لگائی گئی ہے کہ تربیت کی اہمیت کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے اور طریقہ کار کیا ہے۔ میں کوشش کروں گا انتہائی اختصار کے ساتھ اپنی بات کو واضح کر سکوں۔ اس آیت کریمہ میں جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قوا انفسکم، اس کا معنی ہے علموہم وادبوہم، اپنے گھر والوں کو تعلیم بھی دو، ان کو ادب بھی سکھاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر بیٹیوں کی عظمت کا تذکرہ کیا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں عطا کی، اور پھر وہاں پہ آپ نے فرمایا کہ فعلمہن فاحسن تعلیمہن، خوبصورت تعلیم دی ان کو، فأدبہن فاحسن تأدیبہن، تربیت کی تو بہت خوبصورت تربیت کی، فزوجہن فاحسن تزویجہن، شادی بھی کی تو خوبصورت انداز میں۔ قیامت کا دن ہوگا کن لہ سترا من النار، یہ تینوں بیٹیاں جہنم کے سامنے اس کے لیے دیوار بن کے کھڑی ہو جائیں۔ اگر اس کو تھوڑا بند کر دیا جائے، الرجی محسوس کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے۔ بات یہ کر رہا تھا تربیت کے حوالے سے
اگر آپ ایک لکڑی کسی بڑھئی کو دیتے ہیں، کسی کاریگر کو دیتے ہیں کہ اس لکڑی کو تراش کے اس سے کرسی بنا دے، ایک میز بنا دے، ایک روسٹرم بنا دے، وہ کاریگر اگر لکڑی خراب کر دے تو شاید کوئی اتنا مسئلہ نہیں، لکڑی دوبارہ بھی مل سکتی ہے، کام دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے ایک راجگیر کی ذمہ داری لگا دی ایک عمارت بنانے کی، مٹیریل اس کو پورے کا پورا دے دیا، لیکن بنانے میں اس نے کمی کر دی، کوئی دیوار ٹیڑھی کر دی، کوئی میڑھی کر دی، کہیں پہ کوئی غلطی کر دی، یہ دوبارہ ٹھیک ہو سکتا ہے، کچھ مالی نقصان ہوگا، وقت کا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایک استاد کے پاس اگر کسی طالب علم کو اس کے پیش کر دیا گیا کہ اس کی تربیت کرنی ہے، اس کو سدھارنا ہے، اس کو سنوارنا ہے، اگر اس استاد نے اس میں کوتاہی کی، اس میں غفلت کا شکار رہا، غلطی کا ارتکاب کر بیٹھا، یاد رکھیے گا وہ ایک طالب علم نہیں بگڑے گا بلکہ پوری ایک نسل بگڑے۔ اب اس کو سدھارنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے۔ معاشرے کی اصلاح کرنا، لوگوں کو ایک منہج پہ لے کے آنا، یہ کوئی ایسا عمل نہیں کہ ایک مشین کا بٹن آپ دبائیں گے اور وہ ٹھیک سے چلنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے لیے ایک وقت درکار ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، ایک منہج ہے، اس کے پیچھے ایک عرصہ درکار ہے، اور اگر کسی ایک موقع پر بھی ہم غفلت کا شکار ہو گئے تو شیطان تو اپنی دشمنی کرنا کبھی نہیں بھولتا، وہ تو بہت الرٹ ہے، بہت ہوشیار ہے، بہت چالاک ہے، اور شیطان سے آگے بڑھ کے ہمارے اپنے اندر بھی ایک ایسا نفس موجود ہے جو شیطان سے بھی بڑا ہمارا دشمن ہے، کیونکہ ہم گہرائی سے اگر سوچیں ہمیں گمراہی کے رستے پہ لگانے والا تو شیطان ہے۔ ہمارے پاس ایک موقع ہے بات کرنے کا کہ شیطان ہمیں گمراہ کر رہا ہے، تو شیطان کو گمراہ کس نے کیا تھا؟ اس کے نفس نے گمراہ کیا تھا، اور یہی نفس ہمارے اندر بھی موجود۔ اس لیے تربیت سے کبھی بھی غفلت اختیار نہ کیجیے گا۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، اور کیا ہی کمال کے انداز میں آپ نے بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں الصبی امانۃ عند والدیہ، ایک بچہ اپنے والدین کے پاس امانت ہے، اپنے اساتذہ کے پاس ایک امانت ہے۔ وَقَلْبُ طَاهِرُ جَوْهَرَ نَفِیسَةٌ سَاذِجَةٌ، اس کا دل بالکل صاف تختی جیسا ہے، خالیۃ من کل نقش، اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا، اور وہ ایسی تصویر رکھتا ہے، ایسی تختی اپنے دل میں رکھتا ہے، قابل لکل ما نقش، آپ اس کے اوپر جو بھی لکھیں گے اس کو قبول کرے گا، ومائل الی کل ما یمال بہ الیہ، آپ اس کو جس طرف بھی ڈھالنا چاہیں گے وہ ڈھل جائے گا۔ فَإِنْ عُبِّدَ الْخَيْرُ وَعُلِّمَ نَشَأَ عَلَيْهِ وَسَعَادَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر آپ اس کو خیر کے کاموں پہ لگائیں گے، آپ اس کی تربیت صحیح کریں گے، اخلاقی تربیت، منہجی مزاج اور مشن دے کے آپ اس کو کھڑا کریں گے،
تو وہی انسان، وہی بچہ دنیا کے اندر بھی سعادت مند ہوگا اور قیامت کے دن بھی سعادت مند ہوگا۔ وَشَارَكَهُ فِي ثَوَابِهِ أَبُوهُ وَكُلُّ مُعَلِّمٍ لَهُ وَمُؤَدِّبٍ۔ وہ بچہ جتنی بھی ترقی کرے گا دنیا میں، آخرت کے کاموں میں، جتنی بھی نیکیاں کرے گا، اس کے والدین، اس کے اساتذہ، اس کی تربیت میں شریک ہونے والا ایک ایک فرد، ایک ایک نظام جس نے اس کو ڈھالا، اس کو بنا سنوار کے عوام کے سامنے پیش کیا، جس نے اس کو تراشا، ایک ایک فرد اس کی سعادت میں، اس کی کامیابیوں میں، اس کے ثواب میں وہ برابر کا شریک ہوگا۔ وَإِنْ عُبِّدَ الشَّرُّ وَأُهْمِلَ، اگر اس کو گناہ سکھائے گئے، بد اخلاقی سکھائی گئی، اس کو تکبر سکھایا گیا، اس کو منہج سے ہٹ کے کوئی اور منہج دے دیا گیا، منہج سلف سے ہٹ کے، اور وہ ضائع ہو گیا، شقیہ و ہلاکا، وہ بدبخت بھی ہوگا اور ہلاک بھی ہوگا۔ وَكَانَ الْوِزْرُ فِي رَقَبَةِ الْقَيِّمِ عَلَيْهِ، جو بھی اس کی نگرانی کرنے والا تھا، اس کا سرپرست تھا، جس کی ذمہ داری اس کو تراشنے کی تھی، اس کو سنبھالنے کی تھی، اس کی تربیت کرنے کی ذمہ داری تھی، یا اس کو گناہوں کی طرف لے کے چلا گیا جو بھی انسان، اس کا سارے کا سارا بوجھ اس کی گردن پر بھی ہوگا۔ مکہ کے لوگوں کے بارے میں یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ یہ ظالم خود تو گمراہ ہیں اور پیغمبر کی پہ نازل ہونے والی وحی کو اساطیر الاولین کہہ کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے، کل قیامت کا دن ہوگا اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کے بوجھ کو بھی اٹھائیں گے۔ ایک استاد کی ذمہ داری نسل تیار کرنا ہے، استاد کی ذمہ داری منہج سلف کی ترویج کرنا ہے، استاد کی ذمہ داری کتاب و سنت کی اشاعت کرنا ہے، اور اسی منہج کے مطابق جس منہج پہ پیغمبر کائنات معلم اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا تھا۔ آپ جس سکول میں پڑھاتے ہیں، جس کالج میں پڑھاتے ہیں، جس مسجد میں پڑھاتے ہیں، جس ادارے میں پڑھاتے ہیں، وہاں پہ باقاعدہ بتایا جاتا ہے، لکھا ہوتا ہے دیواروں پہ، انما بعثت معلما، کائنات کے خالق و مالک نے مجھے معلم بنا کر بھیجا۔ اس حدیث کی روشنی میں بیٹھ کے تعلیم دینے والا استاذ اپنی ذمہ داری سے غافل کیوں ہو جاتا ہے؟ اور دیکھیے تاریخ انسانی کا اگر مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ اساتذہ نے کس طرح سے انسان پیدا کیے، اساتذہ نے معاشرے کے لیے کس طرح مفکر پیدا کیے، اساتذہ نے معاشرے کے لیے کس طرح فاتح پیدا کیے، اساتذہ نے معاشرے کے لیے کس طرح سے قاضی اور جج پیدا کیے۔ یہ معاشرے کو ایک ایک چیز پیش کرنا استاد کی ذمہ داری ہے۔ جب استاد کے پاس طلباء موجود ہیں، استاد کی ذمہ داری ہے ان طلباء کی نفسیات کا مطالعہ کریں، ان کو دیکھیں میرے کس طالب علم کے اندر کون سی صلاحیت چھپی پڑی ہے، اور اس چنگاری کو تھوڑی سی ہوا دینے کی ضرورت ہے، وہ شعلہ نوا بن کے اس معاشرے کا مربی بنے گا، اس معاشرے کے لیے بہترین انسان بنے گا۔ یہ سنبھالنا، اس کو سمجھنا، اس نفسیات کو پرکھنا، یہ استاد کی ذمہ داری ہے۔ اگر استاد نے اس ذمہ داری کو چھوڑ دیا تو وہ ایک انسان نہیں بلکہ ایک نسل کو برباد کرنے کا ذمہ دار ہو۔ پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے اندر صحابہ کرام تو اور بھی موجود تھے۔ جناب صدیق کا مقام اپنا ہے، جناب فاروق کی اپنی شان ہے، جناب عثمان کی اپنی سخاوت ہے، اپنا حیا ہے،
जनाब अली की अपनी शुजाअत है, पैगंबर कायनात के पास सहाबाए किराम मौजूद हैं, लेकिन मदीना में तबलीग के लिए मुसअब इब्न उमैर का इंतखाब क्यों किया गया? पैगंबर कायनात समझते थे कि मदीना की फजा के अंदर जो काम मुसअब कर सकेंगे शायद, अल्लाह अकबर, यह नफ्सियात का मुतालिया है। आपने यमन भेजने के लिए सहाबाए किराम में से मुआज इब्ने जबल का इंतखाब क्यों किया? फिर आप बाकायदा ऐलान करते हैं मेरी उम्मत का सबसे बड़ा कारी देखना हो उबई इब्न काब को देखो, फैसला करने वाला देखना हो जनाब अली को देखो, इल्म वरासत का माहिर देखना हो ज़ैद इब्न साबित को देखो। पैगंबर कायनात ने फिर सहाबाए किराम को ये एजाज दिए, उनके मनसब का ये ऐलान किया। आप समझते थे और आपने लोगों को तैयार किया था कि ये मेरे तैयार करदा हीरे हैं जो उम्मत के अंदर एक इनकलाब लेके आएंगे। आज मैं भी बतौर उस्ताद आपके सामने खड़ा हूं और शायद मैं भी मुजरिम हूं। आप तो बहुत अजीम लोग हैं, आपने तो बड़ा काम किया होगा, आपने अफराज संवारे होंगे, लेकिन अगर नहीं संवारे तो यहां बैठे बैठे सोचिए कुछ लम्हों के लिए, अगर मैंने 10 साल तदरीस की है तो 10 साल की तदरीस में मैं उम्मत के लिए कोई एक फर्द भी तैयार कर सका? अगर मैंने 20 साल मनसबे तदरीस पे काम किया है तो 20 साल के अंदर क्या मैंने 2 अफराद भी तैयार करके दिए माशरे को? अगर मैंने 30 साल मनसबे तदरीस को संभाला है तो उम्मत के लिए मैंने क्या किया है? पैगंबर कायनात ने तो 23 साल जिंदगी के अंदर बेशुमार हीरे उम्मत को दे दिए थे। थोड़ा अगर आगे चलते हैं, जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, उनकी शख्सियत मेरे सामने आती है। उनके सामने जानवे तलम्मुस तय करते हुए मुजाहिद इब्न जबर नजर आते हैं, जो एक एक आयत की 3-3 बार तफसीर जनाब इब्न अब्बास से सीखते हैं। अता इब्न अबी रिबा नजर आते हैं, जो रात के तहज्जुद की नमाज में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के साथ खड़े हैं और तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको अल्लाह के साथ ताल्लुक की मजबूती के लिए तैयार करते नजर आते। और कभी मुझे जनाब इक्रमा जैसी शख्सियत भी नजर आती है, वो ताबई कि जिनको जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने अपने घर में रख के एक बेहतरीन मुफस्सिर की शक्ल में उम्मत के सामने पेश कर दिया। अगर मैं थोड़ा और आगे चलूं, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने गुलाम नाफे की तरबियत करते नजर आते हैं, और सहाबाए किराम की जिंदगियों में इस तरह की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह काजी अबू यूसुफ को अपने पास बिठाया करते और कहा करते थे, उनके दिमाग में यह बात बिठा दी थी, अबू यूसुफ तुम एक इंसान नहीं हो, एक मां बाप के बेटे नहीं हो, एक खानदान के फर्द नहीं हो, तुम उम्मत के काजी और जज हो। मैं ये मसला तुम्हारे सामने रखता हूं और तुमसे पूछता हूं, कल को अगर तुम्हें काजी और जज बना दिया गया तो बताओ इस मसले को कैसे हल करोगे? इमाम अबू हनीफा ने इस तरीके से अबू यूसुफ को तैयार किया। इमाम मुहम्मद बिन हसन शैबानी उनको फतावा के लिए तैयार किया। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने यहया बिन यहया लैसी को तैयार किया, इब्ने वहाब को तैयार किया। और इब्ने वहाब कहा करते थे, इमाम मालिक अलैहिर्रहमा अगर न होते तो शायद मैं हिलाक हो जाता। मुझे फिकी अहकाम की वसीरत अगर दी है तो इमाम मालिक ने दी। इमाम शाफी को किसने तैयार किया था? इमाम मालिक ने तैयार किया है, उम्मत को पेश किया। और वो इमाम शाफी रहमहुल्लाह जिन्होंने फिक के उसूल सबसे पहले मुदव्वन अंदाज में इस उम्मत के सामने पेश किए। इमाम अहमद इब्न हंबल अलैहिर्रहमा ने अपने बेटे अब्दुल्लाह को तैयार किया। और अगर मैं हमारी से इल्मी तारीख से थोड़ा हट के दुनिया की तारीख पे नजर दौड़ाऊं, मुझे सुकरात नजर आता है, जो अफलातून को अपने घुटने के साथ घुटना मिला के बिठा के उसको तैयार करता नजर आता है। फिर अफलातून को देखता हूं,
अरस्तु को तैयार करता है, अरस्तु को देखता हूं सिकंदर को तैयार करता है, और सिकंदर को देखता हूं तो दुनिया के बड़े बड़े फातेह के अंदर उसका नाम आता है। तैयार किसने किया था? एक उस्ताद की जिम्मेदारी थी। और आज के साइंसदानों पर अगर नजर दौड़ाई जाए, आइंस्टाइन ने कितने शागिर्द तैयार किए, जेम्स क्लैरिक ने कितने शागिर्द तैयार किए, और वही जेम्स क्लैरिक था जिसके शागिर्दों ने आज के नेट की दुनिया का इनकलाब बपा कर दिया। ये कितनी मिसालें हमें तारीख से ऐसी मिलती हैं कि उस असातिज़ा ने मेहनतें की हैं, हीरे तराशे हैं। हीरे की पहचान करना उस्ताद की जिम्मेदारी है। मेरी बात का गुस्सा ना कीजिएगा, शायद गुस्ताखी की जसारत न कर बैठूं। आप सबसे छोटा हूं, इल्म में, फजल में, शान शौकत में, पहचानो तारफ में मैं आप सबसे हकीर हूं। लेकिन बात यह कहना चाहता हूं, अगर आपने अपने मनसबे तदरीस को संभालते हुए आज तक उम्मत के लिए कोई एक फर्द भी पेश नहीं किया, तो अपने इस पेशा को छोड़ के अल्लाह से माफी मांगिएगा कि अल्लाह मैंने कुताहियां की हैं और शायद मैं इसके काबिल नहीं हूं। और अगर अपने आप को इसके काबिल समझते हैं तो उम्मत को अफराद तैयार करके देना यह हमारी जिम्मेदारी है। आज अगर हमने अफराद तैयार न किए, कल क़यामत को अल्लाह के सामने जवाब देना होगा। कौन तैयार करेगा? अपने आप को छोटा मत समझिए, आप बहुत शान और शौकत के मालिक हैं। अगर आप मस्जिद के मुसल्ले के वारिस हैं, आपके पास तो बहुत बड़ा मनसबे इमामत है, आपके पास अफराद तैयार करने का मौका है। वक्त देना होगा, मेहनत करनी होगी, नफ्सियात को समझना होगा, उसके लिए दर्दे दिल रखना होगा। उम्मत के मसाइल को समझे, किस किस मैदान में, किस किस फील्ड में, कौन कौन से शोबे में, कौन कौन से मामलात के लिए कैसे अफराद की जरूरत है, उस तरह के अफराद की पहचान करें, उन दिमागों को खोजे और उन दिमागों को तराश तराश के हीरे बना के इस उम्मत के सामने पेश करे, ताकि कल को अल्लामा इकबाल जैसे इंसान कहते भी नजर आए, इस एजाज का हकदार मैं नहीं बल्कि मेरे उस्ताद गिरामी है। कल को ऐसा कहने वाले हमारे बारे में भी मौजूद हूं। आइए इस जिम्मेदारी का थोड़ा सा तरीकाकार भी आपके सामने रख देना चाहता हूं। अगरचे आप सब उलमाए किराम हैं, अहले इल्म व ईमान हैं, फिक्र दानिश वाले हैं, लेकिन सबक सुनाने की गरज से मैं भी आपके सामने चंद गुजारिशात रखना चाहता हूं। सबसे पहली गुजारिश यह है, अपनी नीयत को खालिस कर दें। आप जिस मनसब पे बैठे हैं, आपका इंतखाब कायनात के खालिक व मालिक ने किया है, रब्बे जलील ने किया है, उस रब्बे कदीर ने किया है जो कुदरतों का मालिक है, रिफत और बुलंदियों का मालिक है। उसने आपको इस मनसब पे बिठाया है, वरना हमारे से ज्यादा पढ़े लिखे लोग बाजार में फ्रूट की रेड़ी लगा के खड़े होते हैं और कोई उनसे फ्रूट लेना पसंद नहीं करता। हमारे जैसे, हमारे से ज्यादा पढ़े लिखे लोग मजदूरी के अड्डे पे खड़े अपने खरीदार का, अपने गाहक का इंतजार करते नजर आते हैं कि कोई आएगा और हमें खरीद के लेके जाएगा और सारा दिन हम उसकी मजदूरी करेंगे। उनमें से कितने अफराद होंगे जो हमारे से बेहतर हैं, हमारे से ज्यादा पढ़े लिखे भी होंगे। हमें इस मनसब पे बिठाया तो कायनात के रब ने बिठाया है। अपनी नीयत खालिस कर ले कि अगर अल्लाह ने मुझे ये मनसब दिया है तो मेरे इस मनसब का हक अदा करना है और अपने रब को राजी करने के लिए कर। दूसरा, अपने तलबा, अपने जेर तरबियत अफराद की तरबियत अकीदे की बुनियाद पे करें, इब्तिदा अकीदे से करें। व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। एक एक पैगंबर का तज़किरा करते हुए किताब मुकद्दस ने, कायनात के रब ने ऐलान किया। हर नबी की बात को करते हुए उसने कहा था, उअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरू, एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई और नहीं जो जिसके तुम इबादत कर सको। एक अल्लाह की इबादत पे लगे। और पैगंबरे कायनात ने अपनी ऐलान नबुव्वत में सबसे पहला ऐलान ये किया था, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह,
तुफ्लिहु तमलिकुल अरब वल अजम। ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, अपने अकीदे की इस्लाह कर लो, तुम अरब अजम के मालिक बन जाओगे, बादशाह बन जाओगे। तीसरी चीज जो हमारी जिम्मेदारी है, नफ्सियात को पहचानिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की नफ्सियात को पहचाना, उसके मुताबिक फिर अफराद तैयार किए। पैगंबर कायनात के पास सहाबा किराम 1,44,000 सहाबा हज्जतुल विदा के मौके पे रसूल मुकर्रम की पाकीज़ा निगाहों के सामने आपकी जुबान अतर से खुतबा समात करने वाले थे। 1,44,000 में से रसूल मुकर्रम ने अगर मनसबे खिलाफत के लिए किसी का इंतखाब किया तो जनाब सिद्दीक का किया था, क्योंकि पैगंबर कायनात नफ्सियात को जानते। और जनाब सिद्दीक की अगर नजर इंतखाब पड़ी तो जनाब उमर पे पड़ी थी। जनाब उमर ने भी फिर 6 बंदों को मुंतखब किया था। आखिर नफ्सियात को पहचाना था, ये लोग ये काम करने के काबिल हैं। और जहां पे अल्लाह के रसूल ने जिसको जो मनसब बख्शा उसने कोताही नहीं की। चौथी बात, शफकत और नरमी का पहलू इख्तियार कीजिए। मारना, डांट डपट करना, अगरचे किसी हद तक इसका जवाज मिलता है, लेकिन रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी? आपने कहा तो था अगर 10 साल का बच्चा भी नमाज नहीं पढ़ता फद्रिबूहुम अलैहा, फिर उनको मार सकते हो। लेकिन रसूल मुकर्रम ने तो किसी एक बच्चे को भी नहीं मारा। अनस इब्न मालिक बयान करते हैं 10 साल मैंने खिदमत की है, लेकिन किसी एक मौके पर भी अल्लाह के पैगंबर ने मुझे ना डांटा है, ला गरबनी वला मा कहरनी, आपने ना मुझे डांटा है ना मुझे मारा है, और कभी यह भी नहीं कहा अनस मैंने तुम्हें यह काम कहा था तुमने क्यों नहीं किया, और मैंने यह काम नहीं कहा था तुमने क्यों किया है। आपकी अमली शक्ल क्या थी? कायनात के रब ने अपने 2 पैगंबर जनाब मूसा और जनाब हारून को भेजा और वक्त के सबसे बड़े बागी इंसान की तरफ भेजा, जो अपने आप को सिर्फ रब नहीं कहता, आना रब्बुकुमुल आला, अपने आप को बुलंद रब कहता है। उनकी तरफ भेजते हुए भी अल्लाह के पैगंबर अल्लाह ताला ने अपने नबियों से कहा था फक़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, उसके पास जाओगे तो बात नरमी से करना। ये शफकत, ये मोहब्बत, ये नरमी तरबियत के लिए बहुत ही मौजू चीज है। आप नरमी के साथ जिसको जैसे चाहे ढाल सकते हैं। शफकत का रवैया रखें, नरमी का रवैया रखें, मोहब्बत के अंदाज में समझाएं। अगर कहीं पे गलती हो जाए उसकी इस्लाह भी नरमी के साथ कीजिए। मस्जिद में पेशाब करना कितना बड़ा जुर्म है। सैयदना उमर इब्न खत्ताब कहते हैं उन 2 अफराद को जो मस्जिद के कोने में बैठे बातें कर रहे थे, कहा अगर तुम मदीना से होते मैं तुम्हें कोड़े मारता। ये मस्जिद में बातें कर रहे थे। जिस इंसान ने मस्जिद में पेशाब किया था और आम मस्जिद नहीं थी, वो पैगंबर कायनात की मस्जिद नबी थी, जहां पे एक सजदा करोगे अल्लाह 1000 सजदे का सवाब अता फरमाएगा, एक तस्बीह पढ़ोगे अल्लाह 1000 तस्बीह का सवाब अता फरमाएगा। ये वो मस्जिद है जहां पे पेशाब करने वाले को लोग डांटना चाहते हैं। रसूल मुकर्रम ने कहा, नबी रहमत ने कहा छोड़ दो इसको, बैठ जाओ, उसे अपना काम करने दो। कर लिया, अपने पास बिठाया, कहा इन्नल मसाजिदा, ये मस्जिदें अल्लाह की इबादत के लिए होती हैं। इन मस्जिदों को अपने कज़ाए हाजत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। आया था आने वाला, पूछा था, सवाल किया था, इस्लाम कबूल करता हूं, ईमान लाता हूं, आपकी इताअत में आता हूं, आपको नबी रहमत मानता हूं, आपका कलिमा पढ़ता हूं, नबुव्वत और रिसालत का इकरार करता हूं, अल्लाह की तौहीद का, उसकी वहदानियत का ऐलान करता हूं, लेकिन एक बात की इजाजत दीजिए। फरमाया पूछिए क्या इजाजत लेना चाहते हो? कहता है मैं कलिमा तो पढ़ता हूं, इजाजत दीजिए, मैं बदकारी करना चाहता हूं, मेरी ख्वाहिशात ऐसी है,
कंट्रोल नहीं कर सकता। बदकारी करना मेरी एक आदत है, मेरी नफ्सियात है, मेरे मिजाज का हिस्सा है, मेरा शौक है, मेरी तड़प और तमन्ना है, मैं बदकारी करूंगा। पैगंबर कायनात ने कहा ठीक है तुम ये कर लो, कलमा तो पढ़ो, इस्लाम के दायरे में आओ। कलमा पढ़ा, पैगंबर की गुलामी में आया, जाने लगा। पूछा कहां जा रहे हो? कहता बदकारी के लिए, किसी के घर जाता हूं। नबी रहमत ने मोहब्बत से बुलाया, आपने डांटा नहीं, आपने डपट नहीं की, आपने उसको मारा नहीं, धक्के दे के निकाला नहीं, उसको बदतरीन नहीं कहा, उसके मिजाज पे आपने तानो तशनी नहीं किया। पैगंबर कायनात ने बिठा के अपने पास बिठा के पूछा मेरे सहाबी तुम तो किसी और के घर जा रहे हो, अगर कोई तुम्हारे जैसा और आ जाए तुम्हारे घर भेज दूं। हिल गया, दहल गया, लरस गया, कहता मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। फरमाया अगर तुम बर्दाश्त नहीं करते, जिसके घर में तुम जाओगे वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल मेरे लिए क्या हुक्म है? रसूल मुकर्रम ने यो सीने पे अपने नबुव्वत का हाथ रखा और दुआ कर दी, अल्लाह मग़फ़िर लहू ज़ंबहू व तहिर क़ल्बहू, अल्लाह अपने इस बंदे के गुनाह माफ कर दे, इसके दिल को पाकीज़ा कर दे, इसकी शर्मगाह को महफूज कर दे। रसूल मुकर्रम की जुबान अतर से निकले अल्फाज थे, आपकी तरबियत का नतीजा था, आपकी शफकत और मोहब्बत का यह समरा था कि मदीना की गलियों में चलता था, लोग समझते थे नबीना जा रहा है, निगाहें यो झुकी होती थी, इस तरह हया का मुजस्समा था। यह तरबियत किसने की? इसको किसने तराशा? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तराशा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैगंबर कायनात के तरीका कार में से 5वां तरीका तरबियत करने का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदरीज के साथ तरबियत किया करते। तदरीज के साथ आप पहले दिन से तरबियत का और पहले दिन से उनके ऊपर एक पलंदा ना डाल दीजिए, एक बोझ ना रख दें। पहले समझिए, मिजाज को परखिए, उसके बाद फिर तरबियत करने के लिए एक तदरीज का पहलू इख्तियार करें। आहिस्ता आहिस्ता तरबियत की तरफ लेके आए। पैगंबर कायनात में आहिस्ता आहिस्ता तदरीज के साथ अपने सहाबा को मसाइल सिखाए, दीन की तरफ आप लेकर आए। और कुरान मजीद ने यह हिकमत अमली इख्तियार की है कि पहले दिन ही शराब हराम नहीं कर दी, जो घुट्टी में पड़ चुकी थी उसको पहले दिन से हराम कर दिया जाता तो शायद हो सकता था कोई कलमे से ही इनकार कर देता। अगरचे मुझे सहाबा के ईमान पर यकीन कामिल है कि कोई इनकार न करता नबी के पास बैठने वाले, लेकिन यह हिकमत खुदाबंदी है, हिकमत इलाही है, अल्लाह का फैसला था। कायनात के रब ने तदरीज के साथ यह काम किया। आप आस्ता आस्ता साथ लेके चले अपने तुलबा को, अपने शागिर्दों को। और आखिरी बात, अपने दिल में यह बात बिठा लें कि हमने एक फर्द ऐसा तैयार करना है जो आने वाली नस्ल के लिए बेहतरीन मेमार साबित। ये अज़्म कर लें, ये इरादा कर लें। जब आप इस मैदान में उतरेंगे, जब आप ये काम करेंगे और मनहज के दायरे में रह के मनहज सल्फ के मुताबिक उसकी तरबियत करेंगे, एक फिक्र देके उसको खड़ा करेंगे, यकीन जाने कल का दिन होगा, आप शायद दुनिया से चले जाएं, आपका नाम रोशन करने के लिए एक शम्मा नहीं, उस शम्मा से आगे कितनी और शम्में और कितने और चिराग रोशन हो रहे होंगे, और नस्ल दर नस्ल उसका सवाब अल्लाह आपके नामा अमाल में दर्ज कर रहा हो। इसलिए अपने मनसब को पहचानिए, अपनी जिम्मेदारी को पहचानिए, तरबियत के मनहज की तरफ आइए, अफराद तैयार कीजिए। माशरे को जरूरत है, फितने सर उठा रहे हैं और बेशुमार अंदाज में, मुख्तलिफ अंदाज में दुश्मन बड़ा चालाक है, वसाइल का मालिक है, 100 साल का सफर हमारे से आगे कर चुका है, हम अभी पीछे फिर रहे हैं। लेकिन अगर हमने आज से तहैया कर लिया, अज़म कर लिया, राजनपुर, ये क्या है नाम है जी, खानपुर के इलाके के रहने वालों, मेरे साथिया किराम,
उलमाए किराम, मशाइख इज़ाम और प्यारे तलबा, आप अगरचे लोगों की नजर में दूर दराज के इलाके में, बैकवर्ड इलाके में, लेकिन मैं पूरे दावे से कहता हूं जरखेज इलाका है, उलमा की कसीर तादाद है, तलबा अज़्म और हिम्मत वाले हैं, मोहब्बत शौक और लगन वाले हैं। मशाइख आपके पास तरबियत के लिए तैयार है और आपके मशाइख का साया आपके सरों पे कायम है। आपके पास वक्त मौजूद है आज भी नस्लें तैयार करने का, अफराद तैयार करने का। इसमें सुस्ती करेंगे, गफलत का शिकार हो जाएंगे, अफराद तैयार नहीं करेंगे, माशरे के लिए एक नई नस्ल तैयार नहीं करेंगे। कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह के सामने खड़े होकर हमें हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये अमानत के तौर पे है। कल रब ने पूछना है, बताओ तुम्हें अमानत दी थी, उस अमानत का तुमने कहां तक ख्याल किया था। उलमा मौजूद हैं पुल सिरात पे, एक तरफ अगर सिला रहमी मौजूद खड़ी होगी, दूसरी तरफ अमानत खड़ी होगी। इन दोनों को कायनात के रब ने पुल सिरात पे खड़ा क्यों किया? कभी गौर कीजिएगा, कभी सोचिएगा। अगर इन दोनों में कोताही का शिकार हो जाए, सिला रहमी में कोताही का शिकार हो जाए, इस्लाम का मजबूत तरीन खानदानी निजाम टूट फूट का शिकार हो जाता है। अगर आप अमानत के मामले में कोताही का शिकार हो जाए, अफराद तैयार होना, नस्लें तैयार होना खत्म हो जाएगा। फिर अफराद बिगड़ेंगे, नस्लें बिगड़ेगी। जैसे नस्लें बिगड़ेगी वैसे दीन पीछे चला जाएगा, और दीन पीछे चला जाएगा तो आप दुनिया के अंदर खसारे के मालिक होंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।